Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 25th of November 2020, Wednesday. Inspiration of the day is difficult roads often leads to beautiful destinations. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Digital Strike 3.0 Government bans AliExpress and 42 Chinese applications. So, into its third attempt, Government of India has banned approximately 42 Chinese apps from Indian virtual market. और जैसा कि हम सभी को पता है प्रीवियसली 2 अटैम्प्ट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच. And in another blow to Chinese mobile application functioning in India, the government has banned 43 such applications, including the very popular online retail portal that is AliExpress, and that is belonging to the Jack Ma-owned e-commerce giant Alibaba Group. And all these applications has been banned under the section 69A of IT Act 2000. And why these applications have been banned? The simple reason, government has got the input regarding these apps for the engaging into the such activities which are actually prejudicial to the sovereignty and integrity of India. So on the ground of security of state, public order, these Chinese application has been now banned into India. और इन सिक्योरिटी इनपुट्स की रिपोर्ट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उसमें दिया गया दैट रिपोर्ट नेम इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने वो रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करी थी. उसी के इनपुट के बेसिस पर ये 43 चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन किए गए. तो अगर हम डिफरेंट फेजेस की बात करें कि डिफरेंट फेजेस में कितने एप्लीकेशंस बैन किए गए, तो फर्स्ट फेज में या हम इसे कह सकते हैं डिजिटल स्ट्राइक 1.0 जिसे एक्सपर्ट्स नाम दे रहे हैं, 49 चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन किए गए थे इन द मंथ ऑफ जून. लेटर in the month of September, approximately 118 Chinese applications banned किए गए थे, and into the digital strike 3.0, approximately 43 Chinese application banned हुए हैं into the month of November. So in total 220 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अभी तक इंडिया में बैन किया जा चुका है. इसमें से कुछ बहुत पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं. अगर हम नाम दें उनकी गूगल प्ले स्टोर पे उनकी रेटिंग देखी जाए तो 5 स्टार 4.5 की रेटिंग है उन सारे एप्लीकेशंस की, जैसे कि अली एक्सप्रेस, स्नैक वीडियो, कैम कार्ड, एशियन डेट्स. इस तरह का जितने भी एप्लीकेशंस आप देखें तो इनकी रैंकिंग बहुत ही अच्छी है जिनको इंडियन मार्केट में बैन कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी. हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इट इज़ जस्ट अ डिजिटल स्ट्राइक अगेंस्ट द चाइनीज कंपनीज इन ऑर्डर टू रिमूव देयर रूट्स फ्रॉम द इंडियन डिजिटल मार्केट. क्योंकि अगर हम देखें इंडिया के जो डिजिटल मार्केट है उसमें फॉरेन कंपनीज का या फॉरेन फर्म्स का ज़्यादा डोमिनेंस है इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक इंडियन आईटी कंपनीज और मोर स्पेसिफिकली चाइनीज़ कंपनीज. तो उसको रिमूव करने के लिए भी इस तरह के स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ऑन द अदर हैंड सिक्योरिटी ग्राउंड पर तो ये स्टेप लिए ही गए हैं क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए उसका टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, transportation is one of the very critical infrastructure that is very important and strategic for the sovereignty and integrity as well as the security of that nation. तो इन पर्टिकुलर एरियाज में अगर किसी फॉरेन कंपनी का, किसी फॉरेन मार्केट का, किसी अदर कंट्री का डोमिनेशन है तो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नाउ taking such actions in order to reduce the penetration of not only the Chinese firms but also other foreign companies or other countries so that India can attain self-sufficiency as well as can improve its critical infrastructure and critical cyber security infrastructure. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 5. Bengal, Telangana worst affected by rising inflation. 4 states Andhra Pradesh, Odisha, Telangana, West Bengal saw the maximum rise in the prices in the month of October with the retail inflation rate in a double digits against the national average that is 7.61% which was 6-year high. We have already discussed number of times into this COVID-19 duration. Indian economy, not only Indian economy but
the world economy has seen the recessionary blow-ins. वर्ल्ड जीडीपी भी डाउन हुआ है, इवन बहुत सारी डेवलप इकोनॉमी उनमें भी इकोनॉमिक रिसेशन की कंडीशंस आ गई थी. इंडिया की कंडीशन थोड़ी पेक्यूलियर थी. इंडिया में कुछ स्टैगफ्लेशन जैसे सिचुएशन आने की चांसेस एक्सपर्ट एंटिसिपेट कर रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि डिमांड तो सबड्यूड है, डिमांड नहीं बढ़ रही है इकोनॉमी में, देयर इज नो डिमांड बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लिक्विडिटी. बट इसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा था, चाहे वो सीपीआई इन्फ्लेशन हो चाहे वो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हो. ऑल्दो इनिशियली अगर आप देखें तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. सीपीआई इन्फ्लेशन तो बढ़ रही थी पर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन उतनी स्पीड से नहीं इंक्रीज हो रही थी, या हम ये कह सकते हैं कि सबड्यूड बनी हुई थी. तो कई सारे एक्सपर्ट्स का, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इंडियन इकोनॉमी इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाएगी और इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी बिकॉज ऑफ द सर्टन स्ट्रक्चरल इश्यूज. तो उसी को लेकर के जो अभी रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ है उसमें कहा गया है कि जो सीपीआई बढ़ा है लास्ट कुछ मंथ्स में इंडियन इकोनॉमी में, उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड स्टेट्स रहे हैं वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल रहे. इन्होंने अक्टूबर के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली डबल डिजिट का रिटेल इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड किया है. And comparing this to January, when inflation at a national level at 7.59% was closer to the October's figures, shows a different trend. तो अगर हम प्री कोविड ड्यूरेशन की बात करें, हम लॉकडाउन के पहले की बात करें, उसके डेटा को अगर हम आज इस मंथ के या सितंबर अक्टूबर के मंथ के डेटा से कंपेयर करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट ट्रेंड. क्या ट्रेंड डिफरेंट है? जनवरी के मंथ में, इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के फर्स्ट मंथ में जो भी इन्फ्लेशन रही है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.59%, जो भी इन्फ्लेशन रेट रहा है, वो इन्फ्लेशन रेट सारे स्टेट्स में अप्रॉक्सीमेटली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था. या हम ये कह सकते हैं कि none of the states had inflation rates in double digit into the first month of this calendar year. So the price rise was very evenly distributed among all states into the month of January. हालांकि अक्टूबर के मंथ में जो डेटा रिवील हुआ है उसके अकॉर्डिंग देयर इज अ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन अमंग द स्टेट्स. Just like in the month of September, only West Bengal had a double-digit inflation rate. None of the other states was having the double-digit inflation rate into the month of September. और इसी तरह अगर हम अक्टूबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना ने भी डबल डिजिट का इन्फ्लेशन रेट रजिस्टर किया है. तो जनवरी के मंथ के कंपैरिजन में या फिर कि इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के इनिशियल टाइम में, इनिशियल मंथ्स में जो भी इन्फ्लेशन थी दैट वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट कोविड-19 की वजह से जो भी डिस्ट्रप्शन आया है इकोनॉमी में, उसकी वजह से स्टेट्स के बीच में जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में डबल डिजिट का इन्फ्लेशन रेट है, किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में उससे जो नेशनल एवरेज है उससे भी कम है इन्फ्लेशन रेट. एंड दिस इज द soaring prices data of consumer price index based inflation rate in terms of percentage. हम देखें वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, इन सब का डेटा दिया हुआ है और उनके कंपैरिजन में नेशनल लेवल का डेटा दिया है, दैट वी कैन इजीली कंपेयर कि कितने स्टेट्स में नेशनल लेवल से कम इन्फ्लेशन रही है और कितने स्टेट्स में नेशनल लेवल से ज़्यादा इन्फ्लेशन रही है. हालांकि अप्रैल टू मई का डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि उस ड्यूरेशन में अगर आपको याद हो तो डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया था. जितनी भी एजेंसीज जो इन्फ्लेशन का डेटा कैलकुलेट करती हैं और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दे वर नॉट एबल टू कलेक्ट द डेटा. तो इस डेटा में अप्रैल और मई का डेटा नहीं इंक्लूडेड है क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कंट्री इंडिया वॉज इन कंप्लीट लॉकडाउन. तो जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा है स्टेट्स के बीच में, दैट इज इंडिकेटिंग द डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्टेट डिफरेंटली. इट सिंपली इंडिकेट दैट एवरी स्टेट रिक्वायर डिफरेंट blueprint or different plan to recover from the economic recession or recessionary conditions. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5. RBI rejects Muthoot Finance proposals to buy IDBI AMC. रिसेंटली केरला बेस्ड मुथूट फाइनेंस ने प्रपोजल दिया था RBI को कि जो IDBI की AMC कंपनी है, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको
एक्वायर करने का प्रपोजल मुथूट फाइनेंस ने आरबीआई में सबमिट किया था, या पे कह सकते हैं कि आरबीआई से एनओसी लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया था मुथूट फाइनेंस ने। रिसेंटली आरबीआई ने उस एप्लीकेशन, या हम ये कह सकते हैं मुथूट फाइनेंस के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। इट मीन्स नाउ मुथूट फाइनेंस इज नॉट गोइंग टू एक्वायर द IDBI AMC. And we all have discussed what is asset management company. We all know asset management company. क्या रीज़न दिया था बेसिकली मुथूट फाइनेंस ने कि वो एएमसी को किस वजह से एक्वायर करना चाहता था? तो बेसिकली मुथूट फाइनेंस ने जो एप्लीकेशन सबमिट किया था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए फ्रॉम आरबीआई, उसमें कहा था कि जो एक्टिविटीज़ हैं एएमसी की, दैट इज स्पॉन्सरिंग द म्यूचुअल फंड्स or owning an AMC was not in consonance with the activities of operating NBFCs. NBFCs की activities से match नहीं करती AMCs की activity. On this ground, if RBI wants, Muthoot can acquire this IDBI's AMC. बल हालांकि आरबीआई ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और इस प्रपोजल के रिजेक्शन के बाद मुथूट फाइनेंस ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया दैट इट इज अनेबल टू प्रोसीड विद द प्रपोज ट्रांजैक्शंस। तो फिलहाल जो कवायद लगाए जा रहे थे कि मुथूट फाइनेंस एएमसी एक्वायर कर लेगी, वो उसको आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। बैंक्स कलेक्शन एफिशिएंसी में नॉट सस्टेन सेज एसएनपी। As per the recent data, the repayment by the borrowers showed pick up after the 6-month moratorium period ended into the month of August, और अभी तक कलेक्शन की जो एफिशिएंसी है वो 95% तक पहुंच चुकी है। बट कुछ कंसल्टेंसी एजेंसीज, कुछ रिसर्च एजेंसीज, कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनका ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज नॉट एक्चुअली सस्टेनेबल इन नेचर, सच एज स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएनपी बोलते हैं। एसएनपी ने कहा है दिस ट्रेंड में नॉट सस्टेन गिवन द डिमिनिशिंग सेविंग्स दैट कुड पोटेंशियली हर्ट्स द कलेक्शन। तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर के भी जो ऐसे एंटिसिपेशन किए जा रहे थे कि जो टैक्स कलेक्शन है लोन्स का, जो रीपेमेंट्स शुरू हुआ है आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड, उसके बाद बैंक्स का एनपीए को शायद इम्प्रूव हो, बैंकिंग इंडस्ट्री दोबारा से एक स्पीडी ग्रोथ की के पाथ पर आ जाए या स्पीडी रिकवरी उसकी स्टार्ट हो जाए। बट बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, रिसर्च बेस्ड फर्म्स हैं, दे आर एक्चुअली निगेटिंग दिस trend and they are saying that this particular trend is temporary in nature. Even according to the National Automated Clearing House data of 84.83 million debt requests in October, a little over 40% were declined. तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस डेटा प्रेजेंट करता है फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। तो उसने उसके अकॉर्डिंग 84.83 मिलियन डेबिट रिक्वेस्ट हुई थी अक्टूबर के मंथ में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% डेबिट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया था फ्रॉम इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। और इसी तरह का सितंबर और जुलाई का भी डेटा रहा है, जिसमें कई अप्रॉक्सीमेटली 40% की डेबिट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया था बैंक्स ने। एंड दिस इज द कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ डेबिट रिक्वेस्ट, डिक्लाइन रिक्वेस्ट एज वेल एज द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस। तो अगर हम अप्रैल के मंथ से देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस पर्टिकुलर मंथ्स में, और इन सारे पर्टिकुलर मंथ्स में जो डिक्लाइन रिक्वेस्ट है उसका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। अप्रैल के मंथ में इट वाज 25.31% डिक्लाइन, जो डेबिट रिक्वेस्ट थे, जो टोटल जो डिक्लाइन का परसेंटेज था वो 25% था, जो कि अक्टूबर के मंथ में बढ़ता 34.01% तक आ गया है। तो ओवरऑल अगर हम सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50%। तो जितनी भी डेबिट रिक्वेस्ट बैंक्स के पास इस समय आ रही हैं, बैंक्स आर ओनली एबल टू ऑनर 50% ऑफ देम. It means only 50% of debit requests are actually being converted into successful transactions. तो NACH के डेटा को देखते हुए, और इसी तरह के बहुत सारे अदर डेटा भी, एसेट्स भी है, जिसमें हम क्रेडिट ग्रोथ रेट को भी बोल सकते हैं, इन सब को देखते हुए S&P ने यह कहा है कि जो भी कलेक्शन एफिशिएंसी 95% तक आई है इस पर्टिकुलर मंथ के ड्यूरेशन में, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, दैट इज़ नॉट एक्चुअली लॉन्ग टर्म ट्रेंड. बैंकिंग इंडस्ट्री स्टिल इन टू द डोलरम सिचुएशन.
अब देख लेते हैं some other news clips. India gets its latest unicorn Cars 24. So Cars 24, a leading online transaction platform for pre-owned vehicle, has become the latest unicorn or the startup valued at more than $1 billion. तो recently unicorn की list को Car 24 के नए स्टार्टअप्स ने ज्वाइन कर लिया. इससे पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पेटीएम, बाइजूस, ओयो, ओला, स्विगी, जोमैटो, रिन्यू पावर, all these were the prominent unicorns, top Indian unicorn startups. रिसेंटली जो ये कार 24 है बेसिकली गुड़गांव बेस्ड फर्म है. इसने रिसेंटली $200 मिलियन का फंड रेज किया और इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज के बाद दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ द बिलियनियर क्लब्स और द टॉप इंडियन यूनिकॉर्न्स इन इंडिया. And the valuation of the online marketplace for used car has now doubled from $500 million. अक्टूबर के मंथ में, पिछले साल अक्टूबर के मंथ में जो मार्केट प्लेस था उसका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन था, जो कि इस पर्टिकुलर अक्टूबर के मंथ में जस्ट डबल हो गया. और डबल होते ही कार्स 24 ने बिलियनर के क्लब को ज्वाइन कर लिया. तो बेसिकली जो यूनिकॉर्न टर्म है ये ऐसे बिजनेस वर्ल्ड में टर्म यूज़ किया था. इसका मीनिंग होती है ऐसी कोई भी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी या स्टार्टअप कंपनी जिसने कि 1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर लिया हो. इसी तरह डेकाकॉन भी हम यूज़ करते हैं. डेकाकॉन इज अ वर्ड यूज फॉर दोज कंपनीज ओवर अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन, वाइल हेक्टाकॉन इज यूज फॉर सच अ कंपनी विच वैल्यूड ओवर $100 बिलियन. तो यूनिकॉर्न, डेकाकॉन एंड हेक्टाकॉन, ऑल दीज आर द बिजनेस वर्ल्ड टर्मिनोलॉजीज. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. निफ्टी 50 क्लाइंट्स माउंट 13,000 ऑन वैक्सीन होप. कल हम सब ने न्यूज़ पढ़ी थी कि 90% एफिकेसी आई है जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है. उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद निफ्टी 50 का जो स्टॉक प्राइजेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 13,055 पॉइंट्स पर या 13,000 के मार्क को क्रॉस कर गया. So the benchmark Nifty 50 index on Tuesday scaled the psychological 13,000 mark amid the sustained buying by overseas investors. तो overseas investors का जो buying का trend था वो increase हुआ after this news of vaccine development. उसको देखते हुए investors ने Indian market में buying करी, जिसकी वजह से Nifty 50 ने एक अच्छा gain record किया. So the favorable global cues after beginning of US President-elect Joe formal transition also boosted the sentiments of the investors. तो US इलेक्शन के बाद वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के जो होप आई है उससे केवल निफ्टी 50 में नहीं, इवन BSE और अदर जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं सब ने पॉजिटिव डेवलपमेंट रजिस्टर किया है. तो निफ्टी एंडेड एट अप्रॉक्सीमेटली 13,500 following a gain of 128 points or a 1%. Same pattern has also been seen into the Sensex. So Sensex was closed at 44,523, that is up 446 point or 1.01%. And we can see this BSE market capitalization and Nifty November 2020 data on this graph. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Sputnik V95 effective to cost less than $10 per dose. तो रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के. केवल ऑक्सफोर्ड ही नहीं, इवन इंडिया में भी और रशिया जैसे कंट्रीज में भी बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं कि कौन सी कंपनी या कौन सा इनिशिएटिव कितनी जल्दी वैक्सीन को लेकर के आ सकता है. अप्रॉक्सीमेटली 150 इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट कोविड-19. और इसी कंपटीशन को लेकर के हमने ये भी डिस्कस किया था एक बार कि इस कंपटीशन की वजह से जो भी कोविड की ड्रग आएगी फ्यूचर में उसमें कॉस्ट कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा. पहले तो हर कंपनी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहेगी. फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बाद कंपनीज विल कॉम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और accessibility की कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कौन सा इंस्टीट्यूट अफोर्डेबल प्राइसेस में हर नूक्स एंड कॉर्नर्स में डोजेस को पहुंचा रहा है. जो इस पर्टिकुलर वॉर में सक्सेसफुल रहा उसकी वैक्सीन या वो कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी या वो इंस्टीट्यूट
इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में एक अच्छी प्रोग्रेस गेन करेगा। अभी रिसेंटली हमने ऑक्सफोर्ड का 90% एफिकेसी रेट के बारे में डिस्कस किया था। अब आज की न्यूज़ में रशिया डेवलप्ड स्पुतनिक वी वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस हैज़ फाउंडेड टू बी ओवर 95% इफेक्टिव इवन with the cost less than $10 per dose. And for that, Russia has also promised with the number of developing countries, including India, that if this particular dose or this particular vaccine is successfully developed or approved, then Russia will export sufficient quantity of these Sputnik vaccine to India as well. तो भी जो आने वाले एग्जाम्स में उसमें आप थोड़ा थोड़ा हर इनिशिएटिव जो बहुत प्रोमिनेंट इनिशिएटिव है जैसे लाइक ऑक्सफोर्ड वाला, रशिया वाला, इंडिया में जो भारत का जो इनिशिएटिव है उसको लेकर के आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और जो जो वैक्सीन्स डेवलप कर रहे हैं उनका थोड़ा सा मैकेनिज्म कैसे वो वैक्सीन काम कर रही है। बेसिकली जो स्पुतनिक के वैक्सीन है दैट इज वर्किंग ऑन अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और अ प्रोटीन ऑफ द कोरोना वायरस, उसी के बेसिस पर इस पर्टिकुलर वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है। और जो भी इंस्टीट्यूट रशिया में डेवलप कर रहा है इस इंस्टीट्यूट की रशिया का क्लेम है कि दिस पर्टिकुलर वैक्सीन डू नॉट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ दिस इंजेक्शन। तो कई बार वैक्सीनेशन की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि जनरली वैक्सीन में हम वायरस प्रोटीन को ही यूज़ करते हैं वेदर इट इज़ म्यूटिलिएटेड और इंटायरली डेड। तो कई बार ऐसा होता है कि वो बॉडी डिपेंड करता है, जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जैसे वैक्सीन दी आती है उसमें वायरस एक्टिव हो जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग म्यूटिलेटेड और बीइंग डेड। तो उस वैक्सीन की वजह से भी कभी कभी जो इंडिविजुअल है वो इन्फेक्शन में आ जाता है उस पर्टिकुलर वायरस से। तो कोई वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वैक्सीन की डोज को लेने के बाद कितने इंडिविजुअल्स में, जो कितने ह्यूमंस हैं उनमें उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप होता है और कोई अगेंस्ट साइड इफेक्ट डेवलप नहीं होता या वही इन्फेक्शन उस इंडिविजुअल को नहीं हो जाता जिसके लिए वो वैक्सीन लगवा रहा है। तो रशिया का एक क्लेम है कि स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो 95% इफेक्टिव है, कॉस्ट भी उसकी लेस है इन कंपैरिजन टू द अदर वैक्सीन्स दैट आर गोइंग टू बी अवेलेबल इन टू द मार्केट। ऑन द अदर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, वैक्सीनेशन की वजह से कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स रशिया इज क्लेमिंग दैट देयर वैक्सीन इज मोर सेफ इन कंपैरिजन टू द अदर अवेलेबल वैक्सीन इनटू द मार्केट। आज की न्यूज ऑफ द डे, बैंक्स कलेक्शन एफिशिएंसी मे नॉट सस्टेन सेज S&P। All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.